आए हम खुदा की हजूरी में Yeah. सरों को झुकाते हैं। आज शाम हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। ए खुदाम रब्बुल फाज, हम तेरी पाक हजूरी के लिए शुक्रगुजार हैं, खासकर इस वक्त के लिए कि हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं। और ए खुदाम, हम तेरे कलाम को सीखने वाले हैं। ए खुदाम, तमाम प्रेशियस उस्ताद के लिए, टीचर्स के लिए तेरी पाक हजूरी को मांगती हूँ। ए खुदाम, तेरी उस इलाही कुव्वत को मांगती हूँ जो हमेशा तेरे अंबिया को तकवीत देती है। ऐ खुदा, सारे के सारे स्टूडेंट्स को भी मैं तेरी पाक हजूरी में छुपाती हूँ, ताकि आज का सीखा हुआ कलाम उनके दिलों में बैठे और इसको वो अपनी खिदमत के दौरान अपनी जिंदगी में अमली जमा पहना सके। खुदावन, तेरे पाक का तसल्लुत हम सब पे हो, यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में, आमीन। Amen, Daniel, sister. Sister, excuse me. I think there's some echo on your mobile, on your, you're having a little bit of echo there. Yes, I can see the screen. That was church history. Correct. Forever, yes. So, right. Okay. Thank you. Right, Daniel. For the students, right, right, we see that this month, May, this course is church history, and this is an overview of church history. आज की जो खास क्लास है वो हम इसमें तारीखी जो बात है वो कलीसिया की तारीख के बारे में सीखेंगे। And you are right. So here's the first slide. Um, so we, what we're going to do is approximately 3 weeks, we're going to do an overview of church history. Excuse me, Sister Nazarene. यस सर। There, I don't know if you can hear it, but there is some background noise. The writing font is very small. I can't, it's not so much visible. Well, I'll try and make it larger then. Hang on 1 minute. I'm not very good with technology, you know. We'll try and make it larger, but if we make it larger, hang on, give me a second. Okay, no Okay, problem. I'll try and make the font bigger, but it may mess up the slide. There we are, 20. Right, is that bigger? Is that better? I can't see because it is very small. No problem. You Well, just I'm going to start it. read. You see, if I do it, then it messes. If I Okay, do it bigger, then it okay, may you can mess up read, the then I slide. can understand. Yeah, okay. Can you Yes, see it now? I've made the font bigger. yes, now, now, Right. yes, Okay. now And it's you got fine. that. Okay. It's Right. fine Okay. now. What I was saying, sister, there's somebody was making a noise in the background. Hmm. Yeah. Okay. Every It's student, fine. please turn your microphone off. Okay. Only myself and Sister Nazreen must have the one on. Right. Anyway, let's get back to the class. Right. So we're for 3 weeks. We're going to do an overview as a short version of church history. और इन तीनों हफ्तों में, तीनों क्लासों में हम जो कलीसिया की तारीख है उसका मुख्तसर तौर पे हम उसके बारे में सीखेंगे। Then for 2 weeks, we are going to look in more detail at men and women of God in India and Pakistan, South Asia. और 2 हफ्तों में हम देखेंगे पाकिस्तान में मर्द और औरतों की खिदमत के तल्लक से भी हम सीखेंगे, और जो कि साउथ एशिया जो बर आज़म है इसके अंदर मौजूद है। Yes, because before the petition of India in 1948, India and Pakistan were one country. और आज़ादी से पहले, चूंकि जो 1948 में इंडिया की आज़ादी से पहले ये पाकिस्तान जो है और इंडिया जो है ये तकरीबन एक मुल्क ही थे।
Number one, the Church of Jesus was born in the first century on the day of Pentecost. और जो पहली कलीसिया है, जब इसकी पैदाइश हुई या ये कलीसिया बनी, तब जो वक्त था वो ईद पेंतिकोस्त का वक्त था। और ये हमें अमाल दूसरे बाब में इसका जिक्र मिलता है, जो कि ये पहली सदी का वाकया है। Right, please turn with me to Acts chapter 2. और आइए मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब। And we see in Acts chapter 2 the what we call, which we're going to be celebrating very soon, the day of Pentecost. और अमाल 2 में हमें ईद पेंतिकोस्त का जिक्र मिलता है, जिसको जल्द हम इसको मनाएंगे, 20 ईद को, ईद पेंतिकोस्त को। And it says in Acts 2 and verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. You can read that in odd. और देखिए, जो कि दूसरा अमाल का दूसरा बाब है, उसकी पहली आयत में ही ईद पेंतिकोस्त का पूरे तौर पर जिक्र है, जबकि जो तमाम के तमाम जो मेंबर्स थे और शागिर्द थे, वो एक जगह पे जमा थे और यक दिल थे। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। Right. Now, we read in Acts 2 about the outpouring of the Holy Spirit in Jerusalem. और यहाँ पे अमाल दूसरे बाब में पहली आयत में हमने इसमें जिक्र पढ़ा कि पाक रूह जो है वो यरूशलेम में शागिर्दों पे उंडेला गया। And from Acts 2, chapter 2 to Acts 28, the end of the chapter, we see the account in the Acts of the Apostles. और फिर हम रसूलों के जो अमाल है, इसी में हम 28वें बाब, जो कि आखिरी बाब है, इसमें हम उनके अमाल के बारे में पूरे तौर पे हम देखते हैं। And in this account, we see the what we call the early church, or the church of the first century. और हम देखते हैं कि ये जब कलीसिया की पैदाइश हुई, ये तकरीबन पहली सदी का शुरू था। Right, now also, sister, please read Acts chapter 1 and verse 8, verse 8. और इसकी 8वीं आयत में लिखा है, पहले बाब की 8वीं आयत में, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Right, Daniel, so Jesus said that the gospel will spread, or you will be witnesses to Jesus in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. और देखिए, खुदा यीशु मसीह ने ये कहा था कि जब तुम पाकरू पाओगे तो जो खुशखबरी है वो और ज्यादा फैल जाएगी, और यीशु मसीह की जो गवाही है वो ना सिर्फ यरूशलेम, यहूदिया, बल्कि सामरिया और दुनिया के इंतहा तक जो ये गवाही है तुम्हारे अंदर कायम रहेगी। And you are now as we say, and you're going to do in the course on the book of Acts, from Acts chapter 2 to Acts chapter 28 is the account of what we call the early, or the Church of Jesus in the first century. और देखें, जैसे ही हम अमाल की किताब को देखते हैं कि इसके पहले बाब से 28वें बाब तक जो भी कुछ हुआ, वो नई कलीसिया की पैदाइश के तलक से हम इसको पढ़ते हैं, और ये तमाम के तमाम यीशु मसीह की कलीसिया, और ये तब का वाक़या है जो कि पहली सन हिजरी का वाक़या है। And what Jesus said in Acts chapter 1 and verse 8
that the gospel will go first Jerusalem, then Judea, then Samaria, and then to the ends of the world. हालेलुया। और देखें यीशु मसीह के कहने के मुताबिक ये पहले बाब में हमें उसकी 8वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि खुशखबरी जो है वो ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि यहूदिया में भी और तब सामरिया में भी और फिर दुनिया की इंतहा तक ये गवाही जो है वो फैलेगी। And this is as you're doing in the course on Acts of the Apostles, this is what we are going to see happen. Acts chapter 2 is Pentecost, outpouring of the Holy Spirit on Jerusalem. And from there, the gospel went to all the world, the और known देखिए world of that time. और देखिए जैसे हम इसके बारे में सीखेंगे कि अमाल 2 बाब में जो ईद पेंतिकोस का वाक्य है, यानी खुदा के रूह का पाक रूह का जब नजूल हुआ तो फिर ये जो गवाही है वो यरूशलेम से और फिर यहूदिया से और फिर वही गवाही जो है वो ट्रेवल करेगी, सफर करके पूरी दुनिया तक ये गवाही जो है वो पहुंचेगी। And so, two of the apostles, Thomas and Bartholomew, went to India, to southern India. और देखें ये 2 जो रसूल हैं, हत्ता कि ये जो तोमा रसूल है और बर्तलमाई, ये जो है इंडिया तक गए और फिर ये सौदर्न जो इंडिया है वहां तक ये इस गवाही को लेके आए। And some people say that Thomas even went as far north as the Punjab. और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि तोमा रसूल जो है वो पंजाब के कुछ हिस्सों में भी वो खुशखबरी को लेके आए। So there has been the Church of Jesus or the Gospel in India for 2,000 years since the time of Thomas and Bartholomew in the first century. और देखिए पहली सदी के बाद 2000 साल इसको बीत चुके हैं और फिर इंडिया में तोमा रसूल जो है वो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक इस खुशखबरी को वहां पे लेके आए, जो कि पहली सदी में इसका जिक्र हमें मिलता है। Daniel, right. Now, the next section it's marked number 1. It should really be number 3. The 2nd to 3rd centuries AD, Anno Domini. और जो अगला हिस्सा है जिसके बारे में हम खास तौर पर सीखेंगे वो इसका तीसरी जो सदी है, दूसरी से लेकर तीसरी सदी में, जो कि डोमिनिक जो है वो हिस्सा कहलाता है कलीसिया की। Now, from the 2nd to 3rd centuries, the gospel spread around the Roman Empire. और देखें कि दूसरी से तीसरी सदी तक जो खुशखबरी थी वो फैलते फैलते रोम में, ये इसके रोम के हुक्मरान तक ये खुशखबरी पहुंची। And this was the age known as, pardon me, this was the age known as the age of the early church fathers. और यही वो दौर था जो कि खुशखबरी के जरिए से फैला, यही जो दौर था, ये जो फादर्स, जो कलीसिया के फादर्स का दौर, जो अर्ली फादर्स थे उनका दौर कहलाया। And if you see in the PowerPoint, the name of them, Irenaeus of Lyon, that's France, Polycarp, the Bishop of Smyrna, Smyrna's in modern Turkey, they were martyred, and Justin was also martyred. Martyred means they were killed or executed for their faith. First of all, here is written on the slides. Yes. I can't see number 3. No, you didn't understand what I just said. Okay. It's not number 3, sister. Okay. It's marked number 1, but it should be number 3. I didn't change it. Okay. So It's please. what came up when I copied and pasted it.
Okay, It repeat it, goes please. 1, 2, and then 1 again and 2 again. It's not correct. Where it says number 1, it should really be number 3. Okay, pardon me. Do you see where it says the 2nd to 3rd centuries? Yes, That's it. yes. That's what's to translate. Yeah. Hmm. Hmm. Do you want me to Please say it repeat again? it. Yes, Do you want me to what you say it said. again? Right. Yes, yes, sure. Okay. The 2nd to 3rd centuries. Yes. और दूसरी से तीसरी सदी के दौरान Right. Ah, that's the translation, is it? yes. Okay. Right. So the 2nd to 3rd centuries, the gospel spread throughout the Roman Empire, which was the known world of that time. और देखें खुशखबरी जो थी दूसरी से तीसरी सदी तक ये रोमन हुक्मरान तक पहुंची फिर और वहां से ये कौन सा दौर था यही वो वक्त था जब कलीसिया जो की से खुशखबरी जो थी वो ट्रैवल करके सफर करके रोम तक पहुंची थी And so this is known, the 2nd and 3rd centuries is what is known as the age of the early church fathers. और यही वो दौर था जो कि पहली से दूसरी सदी में ये दौर जो था ये कलीसिया के फादर्स का दौर कहलाता है And this is the name of the early church fathers: Irenaeus of Lyon, that's in France; Polycarp, the Bishop of Smyrna, that's modern Turkey. They were killed, martyred, and Justin was killed, martyred also. और देखिए ये जो पहले फादर्स कहलाए ये सम्राना और था Sister Nadreen, are you there? Mhm. Yeah. Um, right, we seem to be Yeah. having a technical problem. Yes. She's lost connection. Oh, hang on a minute. There's 2 happy winners. Oh, I think we're having. Hang on a minute. Oh dear. I think we're having a technical problem. No, I've tried both and they're not. Oh, hang on a minute. It's coming back. Oh dear. Oh, help. Oh dear. यस सर Oh, you're back, sister. सॉरी Okay. यस Is सॉरी it? फॉर दैट Are you all having? Are you all having a technical problem with connectivity? यस नाउ इट इज सेटल्ड नाउ Okay, right. Let's resume. Right, where were we? Right. Let's go back to the PowerPoint. Right now, Sister Nazareth, did you get the last point about the early church fathers? यस चर्च फादर्स Right. Should go Smyrna, over them. yes, Yeah, go over that them was a again. martyr, just a martyr. Yeah, Yes. that's right. Irenaeus, Polycarp, Justin, they were all killed, they were all martyred. But these were the fathers, what we term as the fathers of the early church.
और ये जो इब्तदाई कलीसिया के फादर्स कहलाए, इनमें से पॉलीकार और जस्टिन जो थे वो मारे गए और वो फिर जो थे वो शहीद गर्दाने गए। And we can see, well, let's put it this way. The second and third century, during the second and third centuries, the gospel spread very rapidly in the Roman Empire. और देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी से तीसरी सदी का दौर था, ये ऐसा दौर था जिसमें खुशखबरी जो थी वो रोमन जो हुकूमत थी उसमें तेजी से फैलने लगी। And by the third century, about what was the thing? It's about 25% of the Roman Empire were Christians. और देखें कि जो 25% लोग थे रोम के अंदर, वो सारे के सारे मसीही हो गए, और ये वो वक्त था जब तीसरी सदी का दौर चल रहा था। Now, in the first to third century, there was a lot of persecution by the Roman emperors of the Christians. और देखें, पहली सदी और तीसरी सदी का दौर भी ऐसा दौर था जब खुशखबरी फैल रही थी, लेकिन यही वो वक्त था जबकि एजार सानिया जी थी वो रोमन हुकूमत की तरफ से क्रिश्चियनों पर या मसीहियों पर होने लगी। They were killed, they were put in the arena with lions, and they got killed often by lions. और वो तमाम के तमाम जो थे वो खुशखबरी की खातिर शहीद हुए, और कुछ को तो शेरों की मान में डाला गया और कुछ को शेरों ने खा लिया और शेरों ने हलाक कर दिया। But in spite of the persecution, the gospel spread very rapidly in the Roman Empire from the first to the third centuries. ये देखें कि बहुत ज्यादा इज़्ज़ार सानिया जो थी, मुश्किलें जो थी वो उनको आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो खुशखबरी का काम था वो तेजी से फैल रहा था, और रोम के अंदर ये पहली से तीसरी सदी का वाक़या है कि खुशखबरी जो थी वो तेजी से फैलने लगी। So by the third century, the great Roman Empire was moving from paganism, that's idolatry and all the paganism of the Romans, and it was moving towards being more Christian. और देखिए, तीसरी सदी में जो अजीम हुक्मरान था रोम का, वो क्या हुआ कि खुशखबरी जब तेजी से फैल रही थी तो वो बुत परस्ती को छोड़कर तो क्या कहाँ पे वो मसीहत की तरफ वो माइल हो गया। And so in the year 325, the Roman Emperor Constantine, he was said to have a conversion to Christianity. और देखें, 325 सन हिजरी में तो फिर क्या हुआ कि जो वो रोम का हुक्मरान था उसने कहा कि मैं जरूर अपने जो मजहब है तब्दील करके मैं मसीहत को अपनाऊंगा। Now, before he went into a battle, he had a dream the night before he went into a battle. He had a dream that he saw a sign of the cross. और देखिए, जब भी वो किसी जंग में जाता और जंग के लिए निकलता तो वो सबसे पहले क्या करता कि अपने आप को के ऊपर वो सलीब के निशान को बनाता, और वो रोया में इसको देखता कि मैं सलीब का जो निशान है वो बना रहा हूँ, उसको ख्वाब में देखा करता था। And there are men. So, under the Emperor Constantine, he said he had a conversion to Christianity. The Roman Empire went from being a pagan empire to a Christian empire. और देखिए, ये खुशखबरी का ही दौर था जब वो जो रोमन हुक्मरान था कॉन्स्टेंटाइन जो था वो मसीहत की तरफ माइल हुआ, और फिर वो एक बुत परस्त ना रहा बल्कि वो एक मसीही हुक्मरान जो था वो बन गया।
But there's a but in this. Some historians question if the Emperor Constantine had a real conversion to Jesus Christ. लेकिन यहाँ पे एक खास चीज ये है कि कुछ तारीख दान ये बताते हैं कि वाकई क्या उसने जो कॉन्स्टेंटाइन जो था वो हुक्मरान था वो वाकई यीशु मसीह को उसने कबूल किया। Oh, I think hang on a minute, I think I've got something missing here. Right. Yeah, because we had to change this PowerPoint because I had to enlarge the font. Right now we see from the 3rd to the 5th centuries, we see the change in Christianity. और हम तीसरी से पांचवी जो सदियों के दौरान मसीहत के अंदर कुछ हम तब्दीलियों को देखते हैं। Now, you're all doing the course on the Acts of the Apostles. और जैसे कि हम जो अमाल की किताब है उसके बारे में हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। And if you read how the Church of Jesus was in the Acts of the Apostles in the 1st century, you'll और see it was very different in the 3rd century. Anyway, और do you want me देखें to break जिस that up, or is that okay? Is that sentence too big? और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह कलीसिया का जिक्र हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं और फिर हम पहली सदी में इसको देखते हैं, वैसे हम देखते हैं कि पांचवी सदी में जो कलीसिया है या क्रिश्चियनिटी है उसमें कुछ तब्दीलियां हो चुकी हैं। Now, you see in the 1st to the 3rd centuries that the believers were really following the word of God, what it taught in the New Testament. But by और the हम 3rd century, things are starting to change. और देखें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहली सदी से लेके तीसरी सदी तक जिस तरह से कलीसिया जो है खुदा के कलाम पर अमल कर रही थी, आगे हम देखते हैं और इसके बारे में हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं जो कि अमाल की किताब में हमें मिलता है। और फिर आगे पांचवी सदी में कुछ जो तब्दीलियां हैं वो होना शुरू हुई। So many historians question, they have a question if और the Emperor Constantine really had a conversion to Christ. और इसीलिए बहुत से ऐसे तारीखदान हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वो जो रोम का हुक्मरान था वो मसीहत की तरफ किस तरह से वो माइल हो गया। Because if you look at the Church of Jesus after the conversion of Constantine compared with before, you'll see it's very different. क्योंकि जैसे ही हम पहली कलीसिया जो यीशु मसीह की कलीसिया इब्तदा की कलीसिया थी उसको देखते हैं और फिर उस रोम हुक्मरान के बाद की कलीसिया को देखते हैं तो फिर हमें बहुत बड़ा इन दोनों के दरमियान फर्क नजर आता है। Because after the conversion of the Emperor Constantine, there was a mixture of Christianity and paganism. और देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा मुआवजा करेंगे कि पहली इब्तदाई जो कलीसिया थी पहली सदी से तीसरी सदी तक, लेकिन उसके बाद जो कॉन्स्टेंटाइन था उसके बाद का जो हमें मसीहत के अंदर जो मिक्सचर हमें नजर आता है हम उसको देखते हैं। So before the 3rd century, the Christianity was very pure and kept to what the Old and the New Testaments were teaching. और देखें तीसरी सदी से पहले जो मसीहत थी बहुत ही ज्यादा खालिस मसीही लोग थे, और लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये आगे इसका दौर शुरू होता है तो फिर इसमें बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो हमें नजर आती हैं और इसी के बारे में हम सीखेंगे। But after
Emperor Constantine, we see that increasingly the so-called Christianity is more and more mixing its beliefs and its practice with paganism. और देखें कि कॉन्स्टेंटीन के बाद जो जो कलीसिया थी उनमें कुछ और तरह की चीजें जो थी इसकी तालीम में यानी मसीहत की तालीम में शामिल होना शुरू हुई, जो कि उसके पहले जो मजहब था, पैगानिज्म था, उसकी कुछ चीजें थी जो मसीहत के अंदर मिलजुल सी गईं। So from the 3rd to the 5th centuries, we are seeing that it is the Church of Jesus, or the organized church, is going down into what we now call Roman Catholicism. और देखिए, यही वजह थी कि तीसरी से पांचवी सदी के दरमियान का जो अरसा हमें नजर आता है, क्योंकि उस हुक्मरान की तालीमात जो थी वो इसमें मिक्स होने लगी थी, इसलिए यीशु मसीह की जो कलीसिया थी उसमें फिर जो तनज़्ज़ुली थी वो होना शुरू हो गई। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो रोमन कैथोलिकिज्म है वो फिर वजूद में आया। So we see in the period of the 3rd to the 5th centuries, the Church of, or the so-called Church of Jesus, or the organized church, is increasingly mixing paganism and just a little bit of real Christianity or biblical Christianity. और देखिए, तीसरी सदी से लेकर पांचवी सदी का जो दौर है इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह की जो कलीसिया थी वो पैगनिज्म में तेजी के साथ मिक्स अप होने लगी, और फिर बहुत सारी ऐसी तल्ख जो चीजें थी वो मसीहत के अंदर शामिल होना शुरू हो गई। Right, let me just. Right, so. Right. So the Roman Catholic Church, right, slide 3. The Roman Catholic Church dominated Europe, mostly Western Europe, until the 15th century. That is, most of Europe was practicing what we now call Roman Catholicism. और फिर जो जो रोमन कैथोलिक चर्च है यूरोप के अंदर, इसमें तेजी से 15वीं सदी तक जो ज्यादातर मश्क होने लगी वो बिल्कुल बुत प्रस्ती की जो कुछ ऐसी चीजें थी वो मसीहत के अंदर शामिल हो गई। Yes, so Sister Nazarene, I think really we've covered a lot of ground. So I'm going to stop for a few minutes there. We've got time. Would you like to go over some of those points with the students again? Just to give them a little more clarity, shall we say? Okay. Okay, I give a will. summary and what that's. Okay. Dhanyavad, yes. और देखिए, यहाँ पे कुछ हम खास नकात जो आज हमने सीखे हैं उसके बारे में हम गौर करेंगे कि किस तरह से इब्तदाई कलीसिया जो थी जिसका जिक्र हमें ईद पेंतिकोस में मिलता है, कि जब अमाल उसके दूसरे बाब में हमें मिलता है कि किस तरह मसीह की एक खालिस कलीसिया जो थी वो कायम हुई, और फिर खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक पाक रूह जो है वो रसूलों पर नाजिल हुआ और बहुत सारे लोग जो थे वहां पे गैर ज़बानें बोलने लगे और पाक रूह से भर गए। और इसके बाद फिर ये वो सदी है यानी पहली सदी का वाक़या है। और फिर जो खुशखबरी थी यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। और वाकई फिर यरूशलेम के अंदर पाक रूह नाजिल हुआ, और फिर यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वो ना सिर्फ यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह
ठहरे और फिर वही गवाही जो खुशखबरी थी वो लेकर बहुत सारी जगहों पे गए। और ये पहली से दूसरी और तीसरी सदी का जो वाक्य है, जो खुदा का कलाम है, वो तेजी से फैलने लगा, क्योंकि पाक रूह शागिर्दों पर नाजिल हुआ था और रसूलों को कुव्वत मिली थी। और फिर ये गवाही थी कि वो खुशखबरी को लेकर बहुत सारे इलाकों तक जाएं, और फिर खुदा का कलाम जो है वो फैलने लगा, और मसीहत जो थी, क्रिश्चियनिटी जो थी, वो तेजी से फैलने लगी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे खुशखबरी जो है वो फैलने लगी, तो जो एजार सानिये थी वो भी पैदा हो गई, और खुदा के लोगों के लिए मुश्किलात, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से मनादी कर रहे थे, इसलिए फिर एजार सानियत जो थी वो शुरू हुई। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि तोमा रसूल के बारे में, और उस रोम हुक्मरान के बारे में, कि रोम के अंदर भी ये खुशखबरी पहुंची। लेकिन जब रोम के अंदर ये खुशखबरी पहुंची, तो तब उसका जो अपना बुत परस्ती का मुशरकाना मजहब था, उसकी चंद चीजें जो थी वो क्रिश्चियनिटी के अंदर यानी मसीहत के अंदर शामिल होगी, और बहुत सारे लोग जो थे फिर वो ऐसी चीजों को अपनाने लगे जो कि कुछ तो मुशरकाना मजहब से उन्होंने ले ली और कुछ मसीहत से। तो जो मसीहत थी वो एक तरह का मिक्सचर यानी मिला जुला सा मजहब बन गया, कि वो खालिस ना रहा। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी से पांचवीं सदी का जो दौर है, जब खुदा के कलाम पर लोग खालिस तरीके से अमल नहीं कर रहे थे, और यीशु मसीह की जो कलीसिया थी, जो कि अमाल दूसरे बाब में हमें खालिस कलीसिया नजर आती है, लेकिन पांचवीं से तीसरी से पांचवीं सदी के दरमियान का जो दौर है, वो ऐसा दौर है जिसमें कलीसिया जो है वो तरक्की नहीं कर रही थी, बल्कि वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही थी। क्यों? क्योंकि रोम हुक्मरान से के मजहब से, बुत परस्ती के मजहब से कुछ चीजें जो थी मसीहत के अंदर शामिल हो गई थी। और देखें, जब हम खुदा के कलाम पर पूरे तौर पर अमल नहीं करते, तो फिर हम कभी तरक्की नहीं करते, और फिर खुशखबरी भी नहीं फैलती, बल्कि हम फिर तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं। तो फिर जो हम सीख रहे हैं कि पहली से दूसरी सदी, तीसरी सदी तक खुशखबरी जो थी वो फैली, और वो गवाही को लेके गए। लेकिन तीसरी से पांचवीं सदी का जो दौर था, वो ऐसा दौर था जिसमें खुशखबरी फैली तो फैली, लेकिन उनमें मिली जुली चीजें जो थी वो शामिल हो गईं। और फिर कलीसिया जो थी वो तरक्की नहीं कर रही थी, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही थी। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हमें दो चीजें सीख रहे हैं। जब हम खालिस तौर पे चलते हैं खुदा की हुजूरी में, और मसीह की कलीसिया खालिस तौर से उसके हुजूर में रहती है, तो फिर हम बढ़ते चले जाते हैं, खुशखबरी फैलती है। लेकिन जब हम और चीज़ों को इस अकायद में और अपने ईमान में शामिल कर लेते हैं, तो फिर खुशखबरी जो है रुक जाती है, और फिर लोग तरक्की नहीं पाते। मसीह का बदन, मसीह की कलीसिया तरक्की नहीं करती, बल्कि उनकी तरक्की रुक जाती है। हम ये कहेंगे कि रूहानी बढ़ोतरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो आज का लेसन हमें यही सिखाता है। सो एनीथिंग एल्स सर? Yeah, Daniel Vard, what I want to do is, before we close this, to thank you, Daniel Vard, is I want to do two more things with the students on this period now. So, what we've done in this class, we've looked from the first century, the beginning of the Church of Jesus, as we mentioned before, in Acts chapter 2, and we've gone all the way to the 5th century. और देखिए, हमने यहाँ पे आपको ये सिखाया और हमने सीखा कि दूसरे अमाल में जो पहली सदी का वाक़या है, ये खुदा का कलाम जो है पहला, और फिर पहली सदी से लेके पांचवी सदी तक जो भी कलीसिया के अंदर हुआ, और जो वाक़यात रूनुमा हुए, जो तरक्की हुई, और जो यस सर। So, we saw in the first to third centuries that the Church of Jesus was very pure and was keeping to the teachings of the New Testament and the Bible. और देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि पहली सदी से पांचवी तीसरी सदी तक जो मसीह की कलीसिया थी, जो यीशु मसीह की कलीसिया थी, वो बहुत ही ज्यादा खालिस कलीसिया थी, और वो उन तमाम चीजों को
अपना रहे थे और उन पर अमल कर रहे थे, जिनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में जिस तालीम का जिक्र मिलता है, वो उस पर अमल कर रहे थे। The turning point was in 325 when the Emperor Constantine was said to convert to Christianity. और यहाँ पे जो खास एक नुक्ता हमें मिलता है जो कि 325 का दौर है, इसमें जो कंस्टेंटीन था, जो कि हुक्मरान था, रोम का हुक्मरान था, वो अपनी बुत परस्ती के मजहब से निकलकर मसीहत को उसने अपना लिया। And this turning point from the 3rd century to the 5th century, we see the decline in Christianity from being pure and following the teachings of the New Testament of the Bible to being more like a form of paganism and very little real Christianity. और देखिए यहाँ पे हम खास जो नोट करने वाली बात है कि तीसरी से पांचवी सदी तक भी जो मसीहत को उसी तरह से खालिस होने की जरूरत थी और उसी तरह नए अहदनामा की जो यीशु मसीह की बाइबली तालीम थी उस पर अमल करने की जरूरत थी, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ और तरह की चीज नजर आती है जो कि मसीहत के अंदर बेशक वो थोड़ी बुत परस्ती थी या हम कह सकते हैं कि जरा सी वो चीजें थी, लेकिन जब वो मसीहत के अंदर शामिल हुई तो फिर जो कलीसिया थी वो खालिस ना रही, बल्कि उनके अंदर कुछ और मिली जुली चीजें जो थी वो कायम हो गई। So the purpose, and I'm a history teacher by profession, my degree was in history, I was used to teach history. The purpose of teaching history is to learn the lessons of history. और देखिए जो खास मकसद है यहाँ पे आपको तारीख के बारे में बताने का, तो खुदा के खादम कह रहे हैं कि मैं जो बेसिकली यानी पेशा वराना तारीख को पढ़ाने वाला एक उस्ताद हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं तारीख जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाऊं। तो यहाँ पे बात ये है कि जो तारीख से हमें कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो सीखने की जरूरत है। And this is why we're doing with you and all the other centres the great course in church history, because we must learn the lessons from church history. और देखें, और यही वजह है कि हम आपको जो कलीसिया की तारीख है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, और जो कलीसिया की तारीख के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, हमें ज़रूर इन तमाम चीज़ों से यानी जो इब्तदाई कलीसिया की तारीख है उससे कुछ ना कुछ चीज़ों को हमें ज़रूर सीखने की ज़रूरत है। There are two aspects to this. One is there are very positive things that you and I can learn from church history. और देखिए ये दो तरह की चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं जो हम इब्तदाई कलीसिया से सीखते हैं। एक वो खास चीजें जो कि मुस्बत चीजें हैं जो कि हमें इब्तदाई जो कलीसिया की तारीख से सीखने की जरूरत है और हम इसे सीख सकते हैं। And these lessons we can apply positive, number one, to our own lives, and number two, positively to our local church life. और देखें ये जो हम इब्तदाई कलीसिया से जो चीज़ें हम सीखते हैं, अगर हम मुस्बत तरीके से उसको अपनाएं, ना सिर्फ अपनी जिंदगियों में बल्कि दूसरों की जिंदगियों में। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको अपने लोकल या कौमी मकामी चर्च के अंदर और उसके दौरान हम इस्तेमाल करें, और तो हम ज़रूर है कि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। Secondly, unfortunately, as we have seen from the third to the 5th century, many बिल्कुल। mistakes were made. और दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती से हम क्या करते हैं कि हम इनसे तीसरी और पांचवी सदी से कुछ ऐसी बुरी चीजों को भी हम देखते हैं जो कि बहुत सारे लोग आज भी उनकी जिंदगी में वो मौजूद हैं। And these mistakes
that they made, we must apply to ourselves and try not to make the same mistakes. और देखें ये कितनी ही प्यारी बात खुदा के खादम कर रहे हैं कि देखें अगर हम उन गलतियों को देखें तो उन गलतियों से भी हम कुछ ना कुछ खुद अपनी जिंदगियों में सीखते हैं और हम जब उन गलतियों को देखते हैं तो हमें जरूरत इस बात की है हम कोशिश करें कि उन गलतियों को हम ना करें। So from the 3rd to the 5th century, the mistakes were they brought man-made practices into the Church of Jesus. और देखिए यीशु मसीह की जो कलीसिया थी उन्होंने क्या किया कि दूसरी और तीसरी से पांचवीं सदी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की जो कि इंसान की बनाई हुई चीजें थी और वो उन रसूमात को उन चीजों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उन्होंने अपना लिया। So if you look, as you're doing in the study in the Acts of the Apostles, you look at the Church of Jesus in the 1st century, then you compare it with the so-called church, the organized church in the 5th century, and you will see completely different. और देखें अगर आपको वो कलीसिया जो हमें रसूलों के अमाल में नजर आती है वो एक खालिस कलीसिया थी और जिसका वजूद हुआ पहली सदी में और देखें अगर हम उसको आज के मकामी चर्च के साथ उसका मुआवजा करें या हम उस पांचवीं सदी के दौरान जो कलीसिया बाद में जिसने शक्ल तब्दील कर ली उसके साथ मुआवजा करें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि ठीक नहीं थी। Gotcha. So big mistakes, 3rd to 5th century by bringing into the Church of Jesus, the organized church, practices that are not in the New Testament, not in the Bible, and bringing in man-made practices and teachings which are not according to the Word of God. और देखिए वो गलतियां जो हमें नजर आती हैं तीसरी से पांचवीं सदी के दौरान जो कि इब्तदाई जो कलीसिया So let us stop there for a minute and let us hang on a minute. Let us do the assignments. What is happening with this? That's your 2 assignments up. Number 1 assignment, write a summary of today's class. I think we've lost, hang on 1 minute. I think we lost Sister Nazarene. Mm, 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 mm. Happy winners. Winners is there. Oh, sister, is sister, hello, Sister Nazarene. Have you lost connection? Yes, my electric is low, so now Yeah. I can There's see. some technical Yes, problem is there, is it, sis? Some lack of Just connectivity. a No, what I was just just saying, a minute. yeah, you're getting the connection back. Yeah, no problem. Yeah. Okay, just wait, just 1 minute. Yeah, you take your time. We've got 5 minutes. Yeah. Okay. Well, there's 5 minutes for this fast anyway. Yeah, let me know when you get the connection back. And then we're going to end. I just want to finish off with the assignments and then we'll end the class. Yes, sir. Right. Now, saying to the students, 2 assignments are there. One is the usual one. Write a summary of today's class. It's coming back on the whiteboard. Summary, please, of today's class.
हाँ लग गया ठीक है। Are you there, Sister Nazarene? Yes sir. Hello. Did you get the assignments? Yes. So पहली जो two assignments are there, sister. Number one is okay. the usual one. If the students can do a summary of today's class. और आज के लिए दो असाइनमेंट हैं, यानी दो आपके लिए होमवर्क है। पहला जो होमवर्क है वो आपने आज की क्लास की जो समरी है यानी खुलासा है वो आपने लिखना है। Second assignment, written assignment is what can somebody please stop moving happy winners around? You're moving the whiteboard. Can you please stop that? Right. Number two, second assignment. What lessons can we learn from church history? What lessons can we learn from church history? और दूसरा जो लेसन है या दूसरी असाइनमेंट है वो आपके लिए ये है कि आप कलीसिया की तारीख से आप कौन सी चीजें सीखते हैं या आपने क्या सबक इससे हासिल किया है। Right, Daniel. Now, sister, let me help the students. This assignment, we're only looking at the first to the 5th centuries. The first to the 5th centuries only, because that's all we've done in today's class. और देखिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार हो सकता है अगर आप आज की क्लास को जहन में रखें, यानी पहली सदी से 5वीं सदी के दौरान में जो कलीसिया की तरक्की थी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आप इसके बारे में लिखते हैं कि कलीसिया जो थी एक प्योर कलीसिया थी, वो पहली सदी की बात है। और फिर 30वीं सदी के बाद कलीसिया के अंदर यानी यीशु मसीह की कलीसिया जिसकी शक्ल हमें अमाल दूसरे बाब में नजर आती है, अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में फिर बाद में 3वीं से 5वीं सदी के दरमियान में कुछ चीजें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी उसमें शामिल हो गई। और फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने की, और फिर जो कलीसिया है उसकी जो तनज़्ज़ुली है वो शुरू हो गई। आप बहुत से ये पॉइंट को लेके तो इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। I've already helped you all with the astute assignment, really. We know the first of the 1st century, it was very good church growth and keeping to what the New Testament and the Bible teaches. और ये चीजें आपके लिए मददगार हो सकती हैं कि पहली सदी के दौरान में जो चर्च थी यानी कलीसिया थी जिसकी इब्तदा हुई थी वो खुदा यीशु मसीह की खालिस कलीसिया कहलाई और जिसका हमें जिक्र अमाल में मिलता है। And I've mentioned that from the 3rd to the 5th century that you beginning to get what we term as compromise. You have practices from paganism mixed and a mixture of Christianity and paganism and not pure New Testament Christianity. और देखिए ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत मददगार है कि 3वीं से 5वीं यानी 3वीं, 4वीं और 5वीं सदी में जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बुत परस्ती की चीजें थी वो मसीहत के अंदर शामिल हो गई, यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर शामिल हुई, तो फिर उनके दरमियान में खालिसपन ना रहा बल्कि वो कुछ और तरह की शक्ल इख्तियार करने लगे।